ठीक है। बढ़िया। और बताइए आपका क्या हाल है? बस ठीक है, सच बताए अभी। अच्छा। बस हॉस्पिटल में थोड़ा। हॉस्पिटल में और कितना दिन रहना पड़ेगा? बस अब तो मतलब फ्री कर दिया वहां से। हाँ। लेकिन अब क्या है, मॉनिटरिंग के लिए कंटिन्यूअसली जाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अब उसमें घर में आने मतलब ले जाने के लिए बोल दिया उसने? हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, और एक महीना तो कैसे देखना पड़ेगा अच्छा। 2-3 महीना अभी देखना पड़ेगा। एक्चुअली प्री मेच्योर है ना, तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है। अभी भी लाइट में रखा हुआ है क्या? या तो। नहीं नहीं नहीं, वो NICU होता है ना वहाँ पे। अच्छा अच्छा। ठीक है। ये हमारा ब्लू इकोनॉमी का थोड़ा यूनिट 3 तो खत्म हो गया, अभी 4 स्टार्ट करते हैं। ओके। और रिसर्च मेथोडोलॉजी का 1 2 3 भी लगभग खत्म ही है। 4 का आधा हो गया और ज़्यादा नहीं है उसमें। 4 5 क्लास में खत्म हो जाएगा वो। तो ब्लू इकोनॉमी का और एक यूनिट है उसको। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो उसको मैं देखता हूँ। उसमें इकोनॉमी में यूनिट टू यूनिट 4 में इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ उसके एक मिनट। अब स्क्रीन दिखाई दिया? जी सर। ये है क्या है ये यूनिट फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज टू ए लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स डेवलपमेंट्स डेवलपमेंटल हैंड्स ऑफ इको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इको लेवलिंग। ये इको लेवलिंग एक क्लास लग जाएगा, इको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक क्लास लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड our ecological systems. What is the connection between environment and economy? How the economy will be directly, indirectly related to environment, pollutions, all these things. So let's start with this thing. Okay. Environment and development and how it is related to economy. So the environment is actually uh, where we live with the development is also directly related to the environment. So development and economy are directly or indirectly related to each other. So there is two components of our that is any systems. Both development and economy are directly related. So that's why we already discussed in the unit 3. There's a sustainable development goal is how these different sustainable development goals are related to the blue economy or indirectly related to the oceans or waters. So for that case, we are can the world firstly it is goes from development, then again it is go to sustainable development. So the sustainable development, that means the development is sustained with the help of this environment, not against the environment. So how it can be related or how it can be dominated and who will be the responsible, who is responsible for that. So let's see. So
environment and development, that is development is also important as well as environment is also important for us. So either in general situations for systems or some construction systems, so development is directly harm to the environment. Already we have know that whenever we are going to build a house, first we have to cut the tree. That is the first things, or first we have to destroy the nature. So this is sure example that whenever we are going to be developing in any situation, or whenever we are build an industry, whatever may be, development in the cost of environment, that is already uh, more peoples are sacrificed environment in order to development. So what are the dimensions? That is dimension of developments are economic development, that means importance of improvement of goods services, or by generated new goods services in order to provide additional consumptions or possibility methods of economy of country. That means in order to live our life better, that means we need some goods, we need some services which can be produced newly, or we enhance the services. That is called one part of development in terms of economic, that is called economic development. Means the livelihood or the positions of the people, that means the conditions that will be developed in terms of generation of new good and services, and that is directly related to the economy. That's why development first component is economic development. Second dimension is human development. That means improvement of the dimensions affecting the well-being of the individual and their relationship of the society. That is called human development. There, for example, education, health, these are comes under the human development. While economic development is increases, that means if some people have more money, then they all because health services and this education all needs money. So first is economic development, second comes the human development. By using the economy, the human developments can be takes place. That's why we needs more earnings for that. Then थर्ड स्टेप इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पहले हमको तो पैसा चाहिए कुछ करने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए. फिर हम सोचेंगे कि क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे और आगे जनरेशन क्या यूज करेगा. पहले खुद को खाने के लिए नहीं है और दूसरे को क्या खाना खिलाएंगे. सेम थिंग है. पहले थोड़ा सा इकोनॉमी स्टेबल होना पड़ेगा, फिर खुद का डेवलपमेंट मतलब अपने को और एनहांस होना पड़ेगा. फिर हम सोच सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे क्या हो सकता है. That is sustainable development is the third step or third dimension, that already the definition is meet the current generations necessity with the without hampering the nature and meets the future generations meet. That's it called sustainable development. आप कोई एजुकेशन एजुकेटेड नहीं होंगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे. तो उसके लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा. एजुकेटेड कैसे हो जाएंगे? एजुकेटेड होने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, हमको इकोनॉमिक कंडीशंस हमको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो दीज आर दीज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हिच इज मोस्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. जब भी हम ये डिफरेंट स्टेज में जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री जब जाएंगे, डायमेंशन वन टू थ्री, वी आर मोर कंसर्न टू आर एनवायरनमेंट. सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट. और अगेन यहाँ पे अभी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कम्स अंडर डेवलपमेंट इज कैपेसिटी ऑफ द नेशन टू जनरेट सस्टेनेबल एनुअल इंक्रीज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल से आपको ये देखते हैं कि जीएनपी और जीडीपी ये दोनों कोई कंट्री का इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो ये जो होता है पर कैपिटल इनकम में देखा जाता है कि ठीक है टोटल हमारा इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, और उसको जो कंट्री है उसको डिवाइड कर देते हैं. मान लीजिए अभी पर कैपिटल इनकम इंडिया में लेट्स से इट इज 100 रुपीज और 200 रुपीज. दैट्स मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोई भी पर्सन दिन में 200 कमा रहा है या उससे ज्यादा नहीं कमा रहा है, ऐसा नहीं है. वो एवरेज उसको कैलकुलेट करते हैं. दैट्स मीन्स that is the index which can be represent the whole country's economy, जीडीपी एंड जीएनपी. हम मार्केट में अभी जो क्या बोलते हैं बजट बजट में आता रहता है कि इसका जीडीपी इतना बढ़ गया इतना कम गया.
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई गरीब अमीर बन गया और हर कोई अमीर अमीर बन गया। तो फॉर दैट इट इज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट्स वेयर वी कैन measure in terms of GDP or GNP. GDP is the market value of all financial goods services within a country फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एक साल का क्या होता है वो जीडीपी बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंशियल एंड गुड सर्विसेज बाय परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड। ये दोनों डिफरेंस है। सो डेवलपमेंट हैज बीन आल्सो बेस्ड ऑन पर कैपिटा एक्यूमुलेशंस, कितना पैसा है किसी के पास वो भी है। efficiency of market hypothesis, efficient market hypothesis, and development of association of industrialization measure economic activity, increase in wealth and health, and require larger input of materials, generate larger quantity of waste pollutions. All the things are the measure of the economic development. For ऐसा नहीं है कि we can earn more money than other country, ये इनडायरेक्टली हो सकता है। हम आज ज्यादा डेवलपमेंट कैसे मापा जाएगा कि हमारा ज्यादा, वी कैन जनरेट मोर एनर्जी देन अदर कंट्री, ये भी हो सकता है। वी कैन जनरेट मोर पॉल्यूशन देन अदर कंट्री, ये भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा पॉल्यूशन करोगे तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ये होता है क्योंकि ज्यादा पॉल्यूशन में ज्यादा उसका इंडस्ट्री हो सकता है, तो उसी हिसाब से कोई ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स इट्स हैविंग मोर रिसोर्सेस, so indirectly you can say this is more economic developed country than other. So these are the economic development parameters. And environmental protection was the perceived by any obstacle to the development, obviously कोई environment के ऊपर उसमें restriction लगा दिया जाए, law लगा दिया जाए, तो that is the obstacle or restriction for the development. But this environmental protection or restriction has to be imposed because this is a part of the sustainable development. पहला तो वो डेवलपमेंट में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, लेकिन जब तक हम लोग थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं फिर धीरे धीरे ये सारे रूल आने लगता है। एनवायरमेंटल क्वालिटी वाज आल्सो नॉट मेजर इन द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो अंडर डेवलप कंट्री है, तो वो सारे ये सब नहीं देखते हैं। जो भी है डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, शायद एनवायरमेंट में रिग्रेशन हो, प्रोटेक्शन ना हो, या कोई भी चीज हो जाए। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So see, we are now understand the economic development in details. How it can be economic development generally we are measuring in terms of two things: new products and goods and services. ये दोनों कैसे आएगा? ज्यादा किसी का कोई सर्विस दे रहा है, कोई गुड प्रोडक्शन कर रहा है, या कोई भी ज्यादा प्रोडक्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग एक मानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पार्ट। So see, the market efficiency at equilibrium, we have to maintain all the things. See the graph. This graph is say that the price, y-axis is the price, and the x-axis is the quality. Whenever the price and quality has optimum, then it will be called market equilibrium. ज्यादा प्राइस होने से भी कोई नहीं खरीदेगा, और ज्यादा क्वालिटी होगा या ज्यादा कम क्वालिटी होगा तभी भी नहीं खरीदेंगे। तो क्वालिटी भी सही होना चाहिए, प्राइस भी और रीजनेबल होना चाहिए। क्वालिटी ज्यादा होगा और क्वांटिटी ज्यादा होगा और क्वालिटी कम हो जाएगा तभी भी कोई नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंक्रीज होता जाता है, प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, जैसे कि ये वाला। और सेम प्राइस डिक्रीज होता जाता है तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स आल्सो डिक्रीज होता है। तो दोनों का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम लोग चूज करना पड़ेगा। so that depends on supply curve, demand curve, and economic efficiency equilibrium. Do not go in details, but we have to, for the pure economic development of any country, we should focus on both price and quantity with market supply demand according to our, because whenever we are producing more product that is not required at all, तो वो वेस्ट हो जाता है। इन्वेंट्री है कोई भी कंपनी में, मान लीजिए को जो डिमांड रहता है उससे, जैसे कि एक हफ्ते में मान लो एक 10,000 कोई सेल हो रहा है, तो 10,000 का 10 लाख बना देंगे तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, उसका एक्सपायरी चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अमूल फैक्ट्री में दिन में 10 लाख का उसका पाउच बन रहा है, तो उतना ही उसका डिमांड है, तो 10 लाख की जगह पे 1 करोड़ बना देंगे तो क्या होगा, वो अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी प्राइस को इक्विलिब्रेट करके हमको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इज द कर्व। देन
इश्यूज विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, न्यू क्लासिक इकोनॉमिक आइडिया, क्या क्या इश्यूज है उसको न्यू क्लासिक बोलते हैं। हाई प्रमोशन ऑफ इनकम इज जनरेटेड फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेकंड इज प्राइस ऑफ नॉन ट्रेडेड गुड्स आर नॉट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन एक्सचेंज रेट्स, एक्सटर्नलिटी आर नॉट रिफ्लेक्टेड। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये दिस इज प्योर मार्केट बेस्ड रिसर्च, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट दैट इज रिलेटेड टू दीज थ्री थिंग्स, हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज जनरेटेड फॉर सेल्फ कंजप्शन। इसका मतलब क्या है, ज्यादा इनकम जनरेट होगा तो क्या होगा, उसको खुद का प्रोडक्ट कंजप्शन होगा। देन प्राइस इज नॉन ट्रेडेड गुड्स आर नॉन अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्टेड इन एक्सचेंज रेट्स, जैसे कि कोई खरीद नहीं रहा है और उसको हम प्रोडक्ट बनाते जाएंगे तो वो क्या होगा, काम में नहीं आएगा डेवलपमेंट में। एक्सटर्नलिटी आर नॉट रिफ्लेक्टेड, एक्सटर्नलिटी मींस कोई कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, कहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, वो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है डेवलपमेंट में। Then externalities is central to environmental studies and economy only. What are the externality? A situation in which the private cost or benefit to the producers or purchasers of a good services differ from the total social cost of benefited entitled in his production consumptions. देखो ये सीधे भाषा में इसको समझाया जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना इसको, क्या क्या हिडन कॉस्ट रहता है। जैसे कि हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी रहता है, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस में हम लोग, ठीक है, कोई कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे, 50 ग्राम का जो टूथपेस्ट है 100 रुपीज रहता है फॉर एग्जाम्पल, बट द एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट 100 रुपीज। 100 रुपीज उसका एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। उसमें क्या होगा, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट होगा, उसका जो भी प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा। ये सारे जो होने के बाद कंपनी क्या करेगा, उसको उसमें और एक कॉस्ट ऐड करता है, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रेमेडियल कॉस्ट। मतलब जो ट्यूब हमने खरीदा, वो जो कवर हमने खरीदा, उसको डिस्पोज करने के लिए भी उसमें कुछ कॉस्ट रहता है, तो उसको एनवायरमेंटल कॉस्ट बोलते हैं, वो उसको भी ऐड कर दिया मानते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, ये सारे को मिलाने के बाद उसका रेट हो गया 120 रुपीज। तो 120 रुपीज में कोई नहीं खरीदेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा 20 रुपीज। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है। तो इसमें दो चीज आता है, एक जो वी आर एज एनवायरमेंटलिस्ट, हमको एनवायरमेंटल का जो कॉस्ट हम लोग ऐड किया उस पर फोकस करते हैं, बाकी मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ठीक है, सब्सिडी तो ठीक है, मार्केट वाले देखेंगे। तो जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कॉस्ट। मतलब यहाँ पे दो काम हो सकता है, जो बोतल उसको खरीदेगा, जैसे कि कोई उसका यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स और परचेजर, और दूसरा जो उसको बनाता है दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एक प्रोड्यूसर्स होता है और एक कंज्यूमर्स होता है। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है आइदर प्रोड्यूसर्स उसको बियर करता है या नहीं तो कंज्यूमर्स बियर करता है। तो उसको प्रोड्यूसर्स जब बियर करता है तो उसका जो कॉस्ट है उसमें इंक्लूड रहता है, और कंज्यूमर जो इसको बियर करता है तो उसके लिए उसको क्या होता है, टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रोड चला रहे हैं, गाड़ी मोटर खरीद रहे हैं, कोई व्हीलर खरीद रहे हैं, तो उसमें जितना भी उसका रहता है 18% जीएसटी, 10% जीएसटी, सब में अलग अलग रहता है। तो ये जो कॉस्ट देना पड़ता है, तो ये कॉस्ट कहाँ जाता है, जो टैक्स हम लोग देते हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, हाँ, उसको जो हमने डस्टबिन में फेंका, फिर म्यूनसिपैलिटी में आया, रोड साफ किया, रोड में जो डेवलपमेंट काम हो रहा है, ये सारे में खर्च होता है। तो वो इनडायरेक्टली जो कार मैन्युफैक्चर जो हो रहा है दैट कैन नॉट बियर द कॉस्ट। तो हम कौन बियर कर रहा है, कंज्यूमर वो कॉस्ट को बियर कर रहा है, वो सोशल कॉस्ट हो गया। तो ये जो है दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज। सो दीज एक्सटर्नलिटीज एक्स्ट्रा कॉस्ट रादर देन द प्योर कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर कॉस्ट। जो प्योर मैन्युफैक्चर कॉस्ट के बाहर जो बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं हम लोग, बहुत सारे सब्सिडीज दे रहे हैं, या बहुत सारे ज्यादा जो भी है, so all these things are called externalities that includes in maximum retail price। तो उसमें दो तरीके का एक्सटर्नलिटीज होता है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। व्हाट आर दी थिंग्स, लेट्स सी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, फर्स्ट देखते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या क्या रहता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में देखिए, जैसे कर्व में दिखा गया है, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ गुड्स
और ये क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग मार्केट में जो प्योर प्राइस रहता है उस प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, दैट मीन्स वी हैव एडेड मोर टैक्स। ठीक है, उसमें जैसे कि टैक्स, जैसे कि यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम विथ टैक्स, सप्लाई विथ टैक्स, विदाउट टैक्स, डिमांड, ये सारे चीज को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, एक जो मार्केट रिसर्च करता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स उसमें ऐड करते हैं, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पजेस और द हिडन कॉस्ट, उसको हिडन कॉस्ट बोल सकते हो। you should not remember these figures, but you to write remember the positive externalities और negative externalities क्या क्या चीज है। See, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या होगा, सब्सिडी देंगे। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या करेंगे, टैक्स ऐड करेंगे, वैट हो गया, जीएसटी हो गया, वो नेगेटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव में क्या हो गया, सब्सिडी। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो तो मैन्युफैक्चरर्स जो भी डायरेक्ट कॉस्ट निकलता है, दैट वी हैव टू गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सब्सिडी, उसमें टैक्स नहीं लगा के क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं। 3-4 लाख रुपया आप लोग इलेक्ट्रिक कार ले जाओ और गवर्नमेंट उसका पैसा चुकाएगा कंपनी को। व्हाई, these are externalities due to prevent some externality or some environmental cost or any development cost, because economic development should not be stopped। कोई कार मैन्युफैक्चर कंपनी जो भी है आपका, इंडिया में आके कंपनी यहाँ पे सेटअप किया हुआ, उसमें जो प्रोडक्ट आउट सर्विसेज दिया, उससे क्या होगा, इंडिया का नेशनल डेवलपमेंट, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट NGNP जो है वो सारे इंक्रीज होगा। दैट मीन्स आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑन प्रोग्रेस। तो उसमें वो क्यों आके एनवायरमेंट हम यहाँ पे प्लांट सेटअप करेगा और जो करेगा, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द होल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। एंड हु विल बी पे फॉर दिस, जो यूज करेगा, कौन यूज करेगा, कंज्यूमर्स। वो प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वी आर कल कंज्यूमर्स, हम लोग यूज करेंगे तो उसमें कुछ टैक्स देंगे, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऐड हुआ। बट साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट हैज आल्सो रोल फॉर गिव सम सब्सिडीज, तो वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडीज देगा, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट भी नहीं रुकेगा और आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, सॉरी, जो प्रोसेस भी वो चलता रहेगा, गुड सर्विसेज वो हो जाएगा। So these are the some positive externalities and negative externalities. Example that's the text में. Then come to some theories or some curves that was called environmental Kuznets curves, KEKC. That is how the developments and these externalities, ये सारी चीज कैसे रिलेटेड है, उसको KEKC बोलते हैं, एनवायरमेंटल Kuznets curve। Development paths of the country determines whether there will be a positive or negative effects on environment। तो एनवायरमेंट के साथ, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए बट एनवायरमेंट भी सही रहना चाहिए, तो उसके लिए ये KEKC जो कर्व है उससे हम पता चला सकते हैं। तो एन इन्वर्टेड यू सेपरेट रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यू, यू मतलब कैसे होता है, ऐसे ऊपर से लेके नीचे से ये होता है, ये होता है उल्टा, इन्वर्टेड यू, उल्टा यू को उल्टा देंगे तो जो टाइप का कर्व होगा, इस टाइप का कर्व होता है। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट पाथ एंड द एनवायरमेंट। देखते हैं वो क्या है, यू कर्व, दैट इज कॉल्ड EKC कर्व और एनवायरमेंटल क्रूजनेट कर्व। एन एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन इंटेंसिफाई द इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक ऑफ बोथ रिसोर्सेज डिप्लीशंस एंड वेस्ट जनरलाइजेशंस। ये तीनों चीज हो सकता है, तो ये कैसे होता है, एग्रीकल्चरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर एक फील्ड में ये दो तरीका का होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है along with environmental pollutions और degradations होता है। तो these the relations between these both the development and waste generations or pollutions और environmental depletions, उसका कर्व को ये दर्शाता है EKC। at high level of development, structural changes toward the information industry and services is more efficient and increase the demand for environmental quality, that leveling of the steady decline of the environmental degradation are Kuznets। that means ये बोल रहा है कि जैसे कि हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है तो वी आर मोर फोकसिंग इनटू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जिसका कम डेवलपमेंट हो रहा है तो पहले डेवलपमेंट में फोकस करेगा, उसमें एनवायरमेंट में कैसे फोकस करेगा, तो जिसका जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है
उन्होंने एनवायरमेंट के लिए ज्यादा फोकस्ड है, क्योंकि जितना पॉल्यूशन करना था, जो डिग्रेड करना था तो कर लिया। लेकिन जो पहले पहले स्टार्टिंग फेज में है, उसमें वो क्या करेंगे, वो पहले एनवायरमेंट में फोकस नहीं करेंगे, वो पहले अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। तो ये जो पहला जो स्टेप है, जीरो से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लिए किक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में ध्यान नहीं देंगे, डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देंगे। फिर एक स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप उसको बोलते हैं। जिस स्टेप में क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तीसरा स्टेप में डेवलपमेंट को इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये 3 स्टेज आता है, इसको इन्वर्टेड यू से बोला जाता है। देखते हैं क्या ग्राफ है। और भी स्पेशलिटीज है। यूएस इकोनॉमिस्ट सिम्पसन्स कुजनेट प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ दिस कर्व एंड डेवलपमेंट प्रोसीड हाउ फॉलोइंग द रिवार्ड्स द ग्रोथ एक्यूमुलेट्स। उन्होंने ये प्रपोज किया था। सम्स रिसर्चर्स ऑलरेडी मॉडल, ये सारी चीजें है, वो इतना जरूरी नहीं है। लेट्स सी द कर्व। सी, this is the curve, how this curve is actually placed. This is the u-shaped curve, inverted u-shaped curve। जीरो से जब स्टार्ट होता है, हाफ ऑफ दिस कॉल्ड फर्स्ट स्टेज, देन उसको मिडिल फेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, दैट इज द डेवलपमेंटल स्टेज इज पहले पहले स्टार्ट होता है। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एंड सी द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। पहला जब इंडस्ट्री बनने लगेगा, तो बहुत ही पॉल्यूशन होगा, कंट्री डेवलपमेंट के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेप में एक मैसिव रिडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड पॉल्यूशन, हाईएस्ट पीक में रहेगा, उसमें डेवलपमेंट भी पीक में रहेगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी पीक में रहेगा। सेकंड स्टेप में दोनों पीक में रहेंगे। तो जैसे थर्ड स्टेप हो जाएगा, डेवलपमेंट एक स्टेप में रुक जाएगा, बट द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन रुक जाएगा और डेवलपमेंट इंक्रीज होते जाएगा। दैट स्टेज इज द प्रोडक्शन प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट, द एनवायरमेंटल रूल रेगुलेशंस आर मोर स्ट्रिक्ट, अवेयरनेस एजुकेशन एंड द कंट्रोल इक्विपमेंट, वो सारी चीजें वहां पे लग जाएंगे। तो क्या होगा, दैट ऑल्सो डिग्रेड द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो हो रहा था, द डिग्रेडेशन इज रिड्यूस्ड, but the productions or the development is not stopping. That third step is very much crucial step। तो पहला जो दो स्टेप आएगा, फिर थर्ड स्टेप आएगा। तो ये दिस इज द कॉल्ड कुजनेट कर्व, एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व, और केईसी। तो दिस इट कैन बी ए 4 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कर्व। द नेक्स्ट मॉडल इज महबूबुल हक मॉडल। ये क्या चीज है, ये भी एक्सप्लेन करता है डेवलपमेंट और पॉलिसीज के बारे में। दिस मॉडल हैज अ नोवेल आइडिया, इट इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल एंड फोकस ऑन पीपुल एंड देयर प्राइमरी कंसर्न्स। ये लोगों को फोकस कर रहा है, ना ही कंट्री, रादर देन कंट्री, उसमें सीधा कंट्री का डेवलपमेंट कर रहा था। देन इनकॉर्पोरेट न्यू एनवायरमेंटल सेफ टेक्नोलॉजी इनटू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड सीकिंग वे टू रिफ्लेक्ट द सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स डिसीजन मेकिंग। These models stand to 5 pillars. So this is also one important question, 4 mark or 6 marks. What is the difference between KEC and Kuznets and Mahbub models? उसमें क्या होता है, वो कर्व में that is inverted U shapes and that reflect the economic growth and this environmental degradation of a whole country or as a whole। उसमें धीरे धीरे डिग्रेडेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, एक पीक स्टेज आएगा, फिर ग्रोथ तो बढ़ेगा, बट द डिग्रेडेशन घटेगा। तो ये बट इन दिस महबूब हॉल मॉडल, उसमें क्या होता है, दिस फोकस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायरेक्टली टू द पीपुल एंड देयर कंसर्न्स। जो पीपुल्स हैं कंसर्न और जो कंज्यूमर्स हैं, उनको ऊपर फोकस कर रहा है। एंड व्हाट इज सेज, इट हैव द 5 पिलर्स और 5 स्टेजेस। वहां पे 3 स्टेज था, यहाँ पे 5 उसका पिलर्स है और 5 स्टेजेस है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट इज द मॉडल मस्ट प्लेस द पीपुल एट द सेंटर, economic growth, and it means primary objective must be protect human life and human options। इसका फर्स्ट मोटिव है और फर्स्ट स्टेज है, पीपुल सेंट्रिक है ये, ना कि डेवलपमेंट सेंट्रिक, कंट्री सेंट्रिक। तो जो भी डेवलपमेंट होगा, कॉमन पीपुल और द कंज्यूमर्स है, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ऐसे केस में व्हाट एवर दे आर गोइंग टू डू और गोइंग टू मेक अ गुड एंड सर्विसेज, वहां पे इनका जो लॉस नहीं होना चाहिए, ह्यूमन का कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में।
Every environmental measure must be tested and add human welfare and majority of the world population and the human development. कोई भी चीज बिना लॉस किए ऐसा रूल बनाएंगे, ऐसा रेगुलेशन बनाएंगे, कंट्रोल मेजर इक्विपमेंट्स आएंगे, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने नहीं देंगे। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया में कुछ कर रहे हैं, CO2 ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या कोई सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कैसे हैम्पर ना किया जाए, उसके हिसाब से हम कंट्रोल इक्विपमेंट बनाएंगे, लोगों को रिहेबिलिट करेंगे, दूसरा फॉरेस्ट बनाएंगे। ये सारे करने के बाद हम वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है फर्स्ट पिलर। जो पीपुल्स हैं वहां पे, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको किसी की हालत में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या कोई भी, उनको कोई भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज द मॉडल मस्ट बेस्ड ऑन एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी एंड पर्टिकुलर एनर्जी पिकुलरिटी एनर्जी। दैट मीन्स जो टेक्निक यूज होगा, जो चीजों से यूज होगा, दैट इज एनवायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो वहां पे डीजल या कोयला वहां पे एज ए यूज एज एनर्जी, बट व्हेनेवर इट कैन बी रन्स इन ए हाइड्रो एनर्जी और सोलर एनर्जी, तो उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा, ना कि ऐसा एनर्जी में चले जो कि एनवायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूशन करे। और जो न्यू टेक्नोलॉजीज है दैट कैन बी वेरी गुड फॉर आवर एनवायरमेंट, तो उस टाइप का टेक्नोलॉजी, जैसे कि कोई इंजन यूज कर रहे हैं, वो 60% एफिशिएंसी दे रहा है, बाकी वेस्ट हो रहा है, उसको नहीं। ऐसे इंजन यूज करेंगे जो कि 90% एफिशिएंसी देगा, एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करते हुए, तो ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो दिस जो महबूब कोल हक मॉडल है, दिस इज द लाटेस्ट मॉडल, एंड दैट इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली देन वो वाला जो प्रिमिटिव जो हम देखा था केईसी कॉल। तो बाय ऑप्टिंग द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, नेचुरल गैस, ऑन लीडर फ्यूल, क्लीन टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस कैन बी रिड्यूस एमिशंस। सीधा बात है, एनवायरमेंट को प्रायोरिटी देना इसका मेन मकसद है। थर्ड स्टेज, powerful incentives are needed for economic agents to reflect the correct value of the environment in all decision making. A mechanism must be involved for the pricing of environmental resources. थर्ड स्टेप में क्या ध्यान देना है? पहले तो कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए एनवायरमेंट और जो पीपुल्स हैं, जो कॉमन ह्यूमंस हैं। सेकेंड इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए, क्लीन एनर्जी यूज होना चाहिए। थर्ड इज incentives are needed for economic agents to reflect the correct environmental decision making process. ये जो होता है, these are mainly we are continuously going to monitor the environment, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट आएगा, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो इम्प्रूवमेंट एनवायरमेंट को डेली मॉनिटर होता है, कितना डिग्रेड हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारे। तो इसको जो जज कर रहा है, जो मॉनिटर कर रहा है, वो करप्ट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी रिफ्लेक्ट द करेक्ट वैल्यू एंड दैट कैन बी द डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी। तो उसमें जो मान लीजिए करप्ट नहीं होना चाहिए। मान लो कोई भी फ्लाई एश का कंटेंट हो यार में, या CO2 कंप्लेंट है, कि जो भी SO2 NO2 को जो हम लोग मेजर करते हैं, पार्टिकुलर मैटर कितना है, मान लो कोई पावर प्लांट बन रहा है, तो जो डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि हाउ मच द कंटेंट बिफोर एंड आफ्टर, तो कितना उसमें पॉल्यूशन फैल रहा है, ये करेक्ट आंसर आना चाहिए। मान लीजिए वो उसमें भी कोई घपला हो गया, और उसमें भी मान लो कोई एरर आ गया, तो आवर टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी इम्प्रूव। वो सही सही दिखाएगा, तो उसी हिसाब से मॉडिफाई करके वो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएंगे, तो उनको इसीलिए करेक्ट वैल्यू के लिए पावरफुल इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब सही वैल्यू हमको चाहिए। दिस इज द थर्ड पॉइंट। Then fourth is sustainable development model must be parity and community based. फोर्थ प्रोसेस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का थ्रो में आना चाहिए। जो 17 गोल्स है, 17 गोल्स में किसी ना किसी गोल में वो फिट बैठना चाहिए। जैसे कि हम लोग यूनिट 3 में पढ़े हैं कि सारे गोल्स को हम लोग रिलेट कर रहे थे, ऐसे ही कोई भी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो सस्टेनेबल अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फिट होना चाहिए, और उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। कोसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दे मस्ट मोबिलाइज ऑल एक्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी बिकॉज एवरीवन इज समथिंग वैल्यूएबल इन कंट्रीब्यूट। कोई भी जगह पे कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनको किसी को इग्नोर नहीं करना है। दे मस्ट ड्रॉ लोकल विजडम, एक्सपीरियंस, ट्रेडिशंस एंड पोस्टर लैंड्स, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ अनलेस लोकल कम्युनिटीज बिलीव इन कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी। किसी जगह पे वो डेवलपमेंट काम बन रहा है, तो लोकल वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं है कि उनको वहां पे खदेड़ के दूसरी जगह पे ले जाएंगे जबरदस्ती, और उनको बोलेंगे कि वहीं पे जबरदस्ती रहो। तो लोकल लोगों का एग्रीमेंट के साथ ये चलेगा।
not by forcefully. Fifth is the world is generally divided into north and south. So the rich nations live in the north while the poor countries are situated in south. So the north has roughly one fifth of the world people but consumes 70% energy and 75% of metals और सारे things. जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में ज्यादा डेवलप कंट्री नॉर्थ में रहते हैं और साउथ में कम डेवलप कंट्री में रहते हैं. तो ये बोल रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राजील साउथ अमेरिका जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को लेकर दिखाया. तो इन दैट केस it tends to the help the under developed country. जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका टेक्नोलॉजी उसका मनी और कोई भी पॉलिसीज जो भी है दे शुड बी कंट्रीब्यूट टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ये होना चाहिए. मतलब नॉर्थ वाले साउथ वालों को हेल्प करना चाहिए. इसका कहने का मतलब है as the economy begins in mature, rapid growth in services becomes the dominant factor and declines. Some industry have significant effect of composition of industrial activity, largest industry, population output. ये वही है, कोई बात नहीं इसको. Then environmental development along with the path of economic growth. Environmental development along the path of economic growth. Higher incomes increases demand and goods, services, and those environmental quality. So surest the way to improve environment and become the rich. ये होना चाहिए because economic development without environmental degradations is the main motive of the any countries in the world. तो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी को ज्यादा से कम नुकसान पहुंचे. तो प्रॉपर्टी लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन नॉन सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स. ये उसका रीजन है क्या क्या चीजें है. किसी में गरीबी है तो पहले तो अपना पेट पूरा पूजा करेगा, थोड़ी एनवायरमेंट में वो पैसा खर्चा करेगा. पहले पेट मतलब अपना डेवलपमेंट देखेगा फिर आगे जाके एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन देखेगा. ऑब्वियसली तो दिस इज द पॉवर्टी इज द मेन रेस्ट्रिक्शंस फॉर द डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन दुश्मन है वो है पॉवर्टी. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है उसमें भी एक एजेंडा है reduce the poverty or eliminate the poverty. Everyone should be the clean sanitation facility and living with zero hunger. किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए, उसका भी एक मोटिव है. सेकंड इज रैपिड ऑर्गेनाइजेशंस फास्टर ग्रोइंग ऑर्गेनाइज सेंटर इन डेवलपमेंट कंट्रीज. हम लोग फॉरेस्ट को मिटाते मिटाते पूरा सारे अर्बन कर एरिया कर रहे हैं, कंक्रीट एरिया कर रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग नीड्स मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो ये सारे चीजें भी रेस्ट्रिक्शंस है एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए कांस्टेंट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कांस्टेंट है. लो इनकम एंड ऑटोमेटिक पॉपुलेशंस ये भी है, जगह कम है, कम इनकम है, पॉवर्टी है. ऑब्वियसली लेस डेवलप कंट्री बिकम पॉल्यूशंस हेवेंस. ऑब्वियसली जो कंट्री में डेवलप नहीं है, पॉवर्टी चल रहा है, तो दीज आर द कंस्टेंट फॉर दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये दोनों का ये क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है. तो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उसका हिस्सेदारी होता है क्योंकि हमने लास्ट यूनिट में देखा है कि वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स फंड टू अंडर डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री इन मेनी एस्पेक्ट्स टू रिस्टोर दिस एनवायरमेंटल कंडीशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट along with this pure डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वही जो अंडर डेवलप है या डेवलप कंट्री है उसको वर्ल्ड बैंक भी पैसे देता है बीच बीच में और वो पैसे माफ भी कर देता है कि भाई इतना पैसे लो और जो है वो एनवायरमेंट में यूज करो, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. तो ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक भी हेल्प करते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 तरीका का होता है, लो मीडियम हाई, उसी हिसाब से डिवाइड किया हुआ है. फोकस एंड 3 डायमेंशन ह्यूमन वेलफेयर, ये सारे ह्यूमन डेवलपमेंट और जो एनवायरमेंट है उसका रिलेटेड है. लॉन्जिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितना पैसा इनकम कर रहा है, हेल्थ उसका कैसा है और कितना वो नॉलेज गेन किया हुआ है, एजुकेशन उसका कैसा है. these 3 थिंग्स आर द मोस्टली मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो देख लिया, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे. तो ह्यूमन डेवलपमेंट देखने के लिए क्या चाहिए, उसका कितना पैसा कमा रहा है, कितना नॉलेज है और उसका लाइफ कैसे जी रहा है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रोवाइड्स बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा है दैट मीन्स इट ऑलरेडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. जिसके पास ज्यादा पैसा ऑब्वियसली उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा ही होगा. तो हम लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा ही होगा.
मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ज्यादा है, इंप्लाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो हाई, जीडीपी उसको हाई रहेगा ही रहेगा. That reveals how some countries better than other countries in terms of health and education. Obviously इसके लिए ही हम लोग देखते हैं. लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है? हाई लेवल ऑफ जनरलाइजेशंस, restricted socio-economic, under reporting income developing country, only 3 main variables, problem weighting variables. ये these are the restriction of human development index. जैसे कि हाई लेवल ऑफ जनरलाइजेशंस, ये एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल्स मैं देता हूँ. कोई जनरल हॉस्पिटल्स है, जनरल हॉस्पिटल में पुअर भी जाके ट्रीटमेंट हो सकता है, रिच पीपुल भी जाके ट्रीटमेंट हो सकता है, तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा. बट जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसका इंडेक्स हाई है, तो जनरल में क्यों जाएगा वो? लेकिन गवर्नमेंट में फोर्स किया कि नहीं आप नहीं जा सकते, प्राइवेट में जनरल में ही जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा? वो लिमिटेशन हो सकेगा, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हो जाएगा रिस्पाइट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक, नेग्लेक्टिंग पॉलिटिकल एंड सिविक्स, अभी जैसे बांग्लादेश में चल रहा है, ये सारी चीजें, हिंदू मुस्लिम का वार चल रहा है. तो इवन इफ दे हैव मनी, दे आर यूटिलाइजिंग इन डिफरेंट वे. वार में यूज करेंगे, उसके बाद बम फोड़ने में यूज करेंगे, लड़ाई में झगड़े में यूज करेंगे, सारी चीजें होगा तो क्या होगा, फायदा होगा उसमें. ये सारी चीजें आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट along with the environment. ह्यूमन डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो एनवायरमेंट ऑब्वियसली डिग्रेड होगा ही होगा. पुअर इनकम और इनकॉर्पोरेटेड इनकम, और अपने इनकम किया, आधा पैसा जुए में उड़ा दिया, मतलब यू आर यूटिलाइजिंग द मनी इन अननेसेसरी थिंग्स. तो इस टाइप ऑफ थिंग्स, एजुकेशन में जो खर्चा करना चाहिए वहां पे नहीं खर्चा किया, दारू पीने में खर्चा कर दिया, तो क्या होगा? एसजीआई ऑब्वियसली डिक्रीज होगा. देन पास्ट डेवलपमेंट और प्रैक्टिसेस आइडियाज आल्सो डिस्ट्रक्टिव इवन इन वायलेंस इन नेचर. ये भी कभी कभी होता है. मान लीजिए जंगल में आग लग गया तो पूरा इवन घर में आग लग गया, तो अभी कभी कभी हो सकता है डिस्ट्रक्टिव नेचर का वायलेंस में होता है. सुनामी आ गया तभी भी ये हो सकता है. खाने के लिए ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, तभी भी ये ह्यूमन इंडेक्स इंडेक्स कुछ काम नहीं करता है उसमें. आवर कॉमन फ्यूचर एडवोकेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट ही से आगे ही एक स्टेप हो पाएगा. देन द एंड पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट इज ह्यूमन वेलबींग्स. अच्छा जिंदगी जिएंगे, अच्छा रहेंगे तो ऑब्वियसली होगा. ह्यूमन वेलबींग ऑल्सो कॉन्टेक्ट टू इंडिविजुअल. ह्यूमन वेलबींग्स पर्सनल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, एक्सेस टू मटेरियल, गुड लाइफ, गुड हेल्थ, गुड रिलेशंस, ये सारे रहेंगे तो अच्छे ही तंदुरुस्त रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे. दिस आर आल्सो रिलेटेड टू दिस ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल दीस थिंग्स. Effect of environmental changes on components of the human well-beings. Good health, this is also environmental changes. आपका हेल्थ ही गुड नहीं रहेगा तो आप एनवायरमेंट में क्या सोचोगे? तो द स्टेट ऑफ फिजिकल कंप्लीट मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इलनेस, और गुड हेल्थ इज नॉट ओनली इंक्लूडिंग द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वेल्थ, बट फ्रीडम फ्रॉम द अवॉइडेबल डिजीजेस, healthy physical environment, access to energy, safe water, clean air. See, these are the necessary things which are includes in this Agenda 2030 or Human Development Sustainable Development Goals. Clean and access to clean energy, safe water, reading water, poor eliminations of poor, equalities, gender equalities, सारे आते हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में. तो ये सारी चीजें क्यों हम लोग कर रहे हैं? बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज आवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीजें होना जरूरी होगा. इश्यूज अफेक्टिंग, क्या क्या इश्यूज है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिजीजेस, पॉल्यूशन, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, ये सारे पॉल्यूशन की वजह से आते हैं. तो डिजीज होगा, ये सारे होगा. तो जैसे कोरोना में हम क्या हुआ, इतने सारे कोरोना हुआ तो सारे जितना भी पैसे थे सारे खत्म हो गए, लोग मर गए. तो ऑल दिस आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. देन मटेरियल नीड्स, सेकंड इज मटेरियल नीड्स रिलेट टू एक्सेस इकोसिस्टम्स. जो मटेरियल्स हमको चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स नीड्स है गुड लाइफ जीने के लिए, सारे मिल रहे हैं कि नहीं लाइवलीहुड्स में. एसेट्स, एनफ फॉर फूड, फॉर क्लीन वाटर ऑल द टाइम्स, शेल्टर, क्लॉथिंग्स, एनर्जी, ये सारी चीजें ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग्स. व्हाट आर द इश्यूज? फूड स्ट्रेटजी, स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड एट रिस्क, डिक्रीज इन इनकम, पैसे नहीं है कहाँ क्या करेंगे, जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज, पैसे है लेकिन खाना शॉर्टेज है, खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे भी होता है सिचुएशंस. देन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटीज, इट इंक्लूड्स नेचुरल एंड अदर रिसोर्सेज
फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, क्राइम एंड वार्स, ये तो अभी हमने बताया, जो क्राइम वार्स हो रहे हैं सारे अननेसेसरी थिंग चल रहा है सारी चीजें, तो ये दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस फॉर दिस ऑल दी थिंग्स। एंड क्राइम, वायलेंस, डिस्प्यूट्स, हजार्ड्स, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन, ऑब्वियसली उसमें तो कंट्रोल नहीं है, सारी चीजें होता है, तो देयर आर द रेस्ट्रिक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सोशल रिलेशंस, positive characteristics define the interaction between the individuals, social cohesion, mutual understanding, good partnership, and all these things. What are the issues? Diminishes cultures, ignorance people, local livelihoods, and destruction of traditional foods. ये सारी चीजें हो रहा है, जो नॉर्मल चीजें होता है जैसे कि ट्रेडिशनल हमारा कल्चर ट्रेडिशंस ये सारे खत्म होते जा रहे हैं, वो ये बिकॉज दीज आर कहीं ना कहीं रिलेट टू एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा कल्चर में है कि पेड़ को पूजा करते हैं हम लोग, सूरज को पूजा करते हैं, चांद को पूजा करते हैं, ये ऐसा ही नहीं है, बिकॉज दीज आर समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सेफगार्ड्स ऑफ द एनवायरमेंट, economic development and human development index well-beings, because if it is in threat then all are going to be hampered। तो ये सारे इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ह्यूमन वेलबींग्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इनडायरेक्टली सारी चीजें। सो ड्राइवर्स एंड प्रेशर्स और एनवायरमेंटल चेंजेस, किया क्या प्रेशर्स है, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड इफेक्ट द ह्यूमन वेलबींग्स इंक्लूड बाय वेरियस ड्राइवर्स, क्या क्या है उसमें देखते हैं। फर्स्ट इज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा होते जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली वी हैव टू वार होगा, फाइट होगा, फिर फूड स्कैर्सिटी होगा, डिमांड नेचुरल रिसोर्सेज, सारी चीजें हो जाएंगी, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना चाहिए। दीज आर द pressures that can be interrupts our डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेलबींग जो भी बोल सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न्स, कौन सा पैटर्न में यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स। ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड फाइनेंशियल फ्लो, ये सारे भी होगा तभी सेम हो पाएगा। जैसे कि अमेरिका में उसका जो डॉलर से 80 रुपीज है, हमारा इंडिया का है 80 रुपया, उसका $1 में सामान है, उसका मतलब क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है उसमें, वहां पे ज्यादा उसका ये है, तो वी आर वेरी मच नॉट इक्वल बट द एनवायरमेंटल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल थिंग्स, वहां पे जो एक पेड़ काटोगे शायद और यहाँ पे एक पेड़ काटोगे, बोथ दो आर सेम, सेम इम्पैक्ट आएगा ह्यूमंस पे डिस्पाइट ऑफ ऑल दी थिंग्स। तो ये ग्लोबलाइजेशन से होना चाहिए। एक्सप्लोरेशन फैसिलिटेटेड ऑल द एक्सोटिक स्पीशीज, सारे चीजें इंक्रीज इनइक्वालिटीज, ये सारे उसके रेस्ट्रिक्शंस है। ट्रेड्स, वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन रिजल्ट ऑफ लोअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फॉसिल फ्यूल, इंक्रीजिंग प्राइसेस, ओवरप्राइसिंग, ये सारे चीजें डिजास्टर्स सारे चीजें आते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर द प्रेशर्स व्हिच कैन बी। So this is so where cultivating कहाँ थे, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, मार्केट क्रिएशंस, नॉन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे एजुकेशन रिसेप्शन, these are the restrictions or driving force which can be includes or relate all this development, economic development, human development and sustainable development, तीन चीजें हम लोग यहाँ पे सारे हो सकता है उसका कंबाइन। सो आज के लिए इतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट। आप उसमें है ना जो क्या बोलते हैं गूगल, उसमें गूगल क्लासरूम में मैंने एक शेयर किया था, तो सारी चीजें वहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ, आप बाद में डाउनलोड कर लेना। तो ये एग्जाम का मुझे कुछ आइडिया, रफ आइडिया कुछ, क्या एग्जाम का मुझे इसका कुछ रफ आइडिया, हेलो फाइनल एग्जाम का मुझे इसका कुछ आइडिया, हेलो, हाँ हेलो, मैं बोल रहा था कि फाइनल एग्जाम्स कब होगी उसका कुछ आइडिया। अभी तो इंटरनल खत्म हुआ है जस्ट लास्ट वीक में, अच्छा, फाइनल एक्चुअली दिवाली के बाद होने वाला है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर। दिवाली नवंबर 10 तारीख दिवाली छुट्टी खत्म हो रहा है, नवंबर अक्टूबर 27 से नवंबर 10,
तो ओके जैसे ही 11 तारीख होगा आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, टेंटेटिव डेट है नवंबर में। ओके सर। ये वाला ग्रुप बोल रहा था, आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसमें आप तो हैं ऑलरेडी, पीपुल्स में दिखा ये वाला। जी सर। तो इसमें मैं अपलोड कर लेता हूँ उसको, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर। ओके। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू।